रितेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Of course, thank you very much. फैंटास्टिक। आप लोग एक्चुअली एक चीज़ नोट करोगे आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रितेश भाई। हम लोग दिल्ली से हैं। जनरली जो दिल्ली से बाहर से आते हैं ना, बहुत सारे लोग, उनको दिल्ली की एक शोशा फिगर समझ आती है, राइट? लेकिन आप लोग आज पहली बार देखोगे एक ऐसा इंसान जिसने सफलता हासिल की है, एक ऐसा इंसान जिसने पर्सनल सफलता भी हासिल की है और फाइनेंशियल सफलता भी हासिल की है। और वो इंसान, आप लोग एक क्वेश्चन लेकर जाओगे यहाँ से, और वो मेरी गारंटी है आपको कि वो इतना हम्बल कैसे है। आई एम नॉट किडिंग यू। मैंने रितेश भाई को जाना है बहुत समय से, और होता क्या है कि जब आप किसी को बहुत समय से जान लेते हो ना, आप कुछ पैटर्न्स नोट करना शुरू करते हो। और एक पैटर्न जो कंसिस्टेंट रहा है हमेशा हमेशा, जब इन्होंने स्टार्ट किया था इनोवेट टू वेयर ही इज राइट नाउ, जो आज ये है, मैंने जो एक पैटर्न हमेशा कंसिस्टेंटली आप में देखा रितेश भाई, एंड दैट इज ऑफ ह्यूमिलिटी। और हम वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर कॉन्टेक्स्ट फॉर परप्लेक्सिंग क्वेश्चन दैट आई हैव अबाउट यू। ऐसा क्या है जो डॉक्टर रितेश मलिक को बनाता है so very humble even today when you achieved financial success as well? Okay, first of all, super excited. I'll tell you one very interesting thing about life. मुझे ऐसा लगता है कि ना, जीवन के अंदर the most important thing in life is humility, and I'll tell you the reason behind that. As a doctor, I have seen that typically our chances of becoming a human, and अगर हम लोग mental models की बात करें, it takes 1:84 trillion chances that anyone is born as a human being, and there is nothing to be cocky about in this world. I have just realized this when I felt the most confident in the world. I realized कि यार जीवन है ना, उससे भी बड़ा एक पहाड़ लेके आएगा. So there is no option but to be humble. One thing which I can always bet on, and this is something मैं अपनी बेटी को भी 2.5 साल के, I keep on telling her, जीवन में कुछ करो या ना करो, first be humble, because humility will get two things. One, your ability to listen. You start thinking that you can be wrong. Two, for you audience does not matter then. Size of the audience does not matter. अभी इस रूम में अगर एक इंसान भी होता ना, I would have given my best shot, because the idea is that we don't care about the size of the audience. Once you are humble, you start becoming nimble. You start losing weight. You start losing unnecessary weight about yourself. And then what happens is opportunities come to people who are likable. This is the true story of life. Unfortunately, people don't realize this. If you are likable, people will get you opportunities. If you are not likable, people will not get you opportunities. And 90% of success is not hard work. It is actually people getting you opportunities. I'll tell you, this is actually different to what you would have learned. You would think that a lot of people ask me, "Yaar, you have worked really hard." I always tell them that I'm lucky. It's really, really hard to be successful by just working hard. The hardest working person in the ecosystem around us in our society is a rickshaw puller. He hardly earns anything. It's not hard work. It is your ability to generate trust, honest trust, be humble, be nimble, be open to suggestions, and understand that you might be wrong. Whatever you are thinking right now, there's a very high chance that you will be wrong. As humans, हमें लगता है कि हम ठीक हैं. ये cognitive bias है हमारा. We always think we are right, and our dreams start getting shattered when we get to know the truth. So this is my focus in life. I want to be the most. So a lot of people ask me, what do you want to become? How much do you want to earn? I always tell them my goal is I want to be the most grateful person on the planet. Grateful for every single second of my life. Grateful for this opportunity to sit here. Grateful for having an amazing wife. Grateful for having amazing parents. There is always something. ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. आपके ना जीवन में हमेशा कोई ना कोई चीज ऐसी होगी in which you will feel कि नहीं यार, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है.
और जीवन में कोई ना कोई चीज हमेशा ऐसी होगी जिसमें आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पास ज्यादा है और उसके पास कम है. बी ग्रेटफुल फॉर द सेकेंड वन. पूरी दुनिया के अंदर 28 करोड़ लोग हैं जो ठीक तरीके से देख नहीं पाते. अगर आपके पास एक आंख चल रही है, बी ग्रेटफुल. अगर आपके लिम्स हैं, बी ग्रेटफुल. अनफॉर्चुनेटली पीपल हैव स्टॉप्ड एंड द चैलेंजेस विद आवर एजुकेशन सिस्टम. हमें हमेशा ये बताया जाता है कि कैसे आप पीछे हो दुनिया से. हमें रैंकिंग बताई जाती है. हमें शुरू से, आई एम अ बिग डिसबिलीवर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम. हम गधे पैदा कर रहे हैं बिकॉज our, and that is the reason why people who are amazing at their academic success seldom make wealth. हमारे बैच में जितने भी डॉक्टर्स थे, the ones who were always at the top are working in a government hospital getting 90,000 to 1,20,000 rupees every month. And I realized one thing, there is a pattern, and the pattern is that stop being cocky about whatever you know. Start being nimble. And I use science as my mental model. न्यूटन की जो 3 लॉज है ना, they are the most brilliant laws to live life. The first law, आप लोग तो सब इंजीनियर हैं, मैं तो डॉक्टर हूं, बट आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है. मेरे लिए ये जीवन का सार है. A body in motion will stay in motion. A body at rest will stay at rest until and unless an external force is applied towards it. External force comfort zone के बाहर आएगी. We don't move. हम लोग innovate चलाते हैं. We have so many people coming to us and a lot of people ask me, what is the right time to start a business? I always tell them the best time to start a business was yesterday. The next best time is now. You will keep on procrastinating. The second thing is force is equal to change of mass into acceleration. People don't realize this. मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा मास होगा उतना मुश्किल होगा, उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. द आइडिया इज बी निम्बल, हैव डीप क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड थिंक लेस ऑफ योरसेल्फ. एंड आप ना हर आदमी से कुछ ना कुछ सीख सकते हो. I have realized one thing, in most of the rooms including this, I am not in the top 25% of brain power. मतलब आप, this is something that I have realized. My IQ will always be in the standard deviation wala phase. And I realized one thing, it does not matter. What matters is that your opportunities will come to you if you are likable. Start becoming likable, and by honesty, by building trust. And the last part of Newton's law, which is very phenomenal, is for every action there is an equal and opposite reaction. We don't realize, हम बहुत बार ना हमें पता होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं. And this has happened with me as well. I know there's something wrong that I'm doing, but ना आप समझा देते हो अपने आप को. Everything that you do will circle back to you. So make sure that, at least ensure that whatever you know which is happening, which is wrong, change that. And I think humility, I have done a thesis on so many successful founders. One thing which I have realized, which has been constant, is there have been 2 or 3 drastic decisions that shaped their life. Okay. And most of the decisions come because of someone who opened that opportunity. And people don't open opportunities for people who are not likable. Trust me, like if you are not likable, आप कितने ही skilled हो जाओ, people will not open opportunities for you. So being likable, being humble, and again I always repeat this. I asked my dad, बड़े होके क्या बनूं? उन्होंने कहा पहले अच्छा इंसान बनो. वहाँ competition बहुत कम है. I think that is something which is so powerful, which and I think the sooner you realize this, the better it is for you, because you will start focusing on being grateful, being humble, being nimble, and having less mass. Unfortunately, I'm a Punjabi, so you should know about my background. हम लोग जिस गांव से आते हैं, वहाँ पे है ना, सबसे पहले पैसा आएगा तो आदमी है ना वो बाइक लेके आ जाता है, बुलेट. Now, and the drastic change came to me when I went to Tamil Nadu. I did my medicine from there, and I realized one thing, that even the richest people of Tamil Nadu origin wore a dhoti and they lived like a simple life. And हमारे को घर पे ये बताया जाता था कि नहीं बेटा,
मार्क्स कितने आए हैं, हमारे को बताया जाता था अगर 60 आए हैं तो 75 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर, एंड बाय द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, हाउ विल यू डू बिजनेस विद मी? एब्सोल्युटली. आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ. रितेश भाई के इस और मैं आई होपफुली अर्न दैट ट्रस्ट टू कॉल हिम भाई, इन दैट सेंस. सो रितेश भाई के इस गेस्ट लेक्चर से ना आप लोग एक एक्टिविटी कीजिए अभी बैठे बैठे इस रूम में, और आप सभी लोग जो ऑफ कोर्स इसको वीडियो में देख रहे हैं, विच इज कनेक्ट द डॉट्स. इनके पूरे लाइफ करियर को अगर आप ध्यान से कनेक्ट करना शुरू करोगे, यू विल एक्चुअली रियलाइज देयर इज अ वेरी क्लियर पैटर्न ऑफ हाउ ही इज मेड डिसीजंस. सो रितेश भाई, अब एक नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं. आज तो आपको दुनिया देखती है एक पर्सपेक्टिव से, राइट? एक डॉक्टर रितेश मलिक, हु इज अ सक्सेसफुल फाउंडर, जिसने इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. लेट्स अनबंडल यू. लेट्स अनबंडल द रितेश हु वाज स्टडीइंग मेडिसिन इन तमिलनाडु. अब वो ऐसा समय है जब आप में इतनी सारी क्लैरिटी नहीं हुई होगी, जब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा, राइट? यू वर ट्रेनिंग टू बी अ डॉक्टर एंड नॉट येट अ डॉक्टर. दो बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, रितेश भाई कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, राइट? तो फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, उस पर तो हम पहुंचेंगे. लेकिन जब आपके पास इतनी क्लैरिटी नहीं थी, क्या आज आप रियलाइज करते हैं कुछ ऐसे मेंटल मॉडल्स दैट हेल्प यू बैक देन टू सस्टेन थ्रू? क्योंकि एक पंजाबी को लिटरली गोइंग ऑल द वे टू तमिलनाडु, स्टडीइंग मेडिसिन एंड देन टेकिंग अ डिसीजन कि मुझको तो यार एंटरप्रेन्योर बनना है. व्हाट वाज देयर बैक देन इन रितेश दैट यू नाउ रियलाइज, यार वो चीज मुझ में आज भी है, दैट इज व्हाट वर्कड फॉर मी. व्हाट वाज दैट? So I always tell this, and this is the thesis of life, and that is move out of your comfort zone. हम लोग ना चाहते हुए अपनी comfort zone में रहते हैं, and this is cognitive bias. What happens in our mind? And I'll tell you what is a bias. Bias is that if I tell you something with a reason which might be a wrong reason, you start believing it. Now, I have realized one thing. People who are successful move out of their comfort zones. Always ask every single day to yourself, are you comfortable? If the answer is yes, it's high time. Start doing things which are slightly outside of your comfort zone. And I'll tell you, मैं आपको ना इससे अपनी एक कहानी बताता हूँ, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी. Hope Hindi is okay. 100% absolutely, बिल्कुल. मैं बचपन में तोतला था, तो मैं र को ग बोलता था. Now my name Ritesh went as Gitesh. Unfortunately, परिवार के सारे सदस्यों के नाम र से चालू होते थे. हमारे एक पंडित थे, उन्होंने कहा था घर के सारे लोगों का नाम र से चालू होना चाहिए. अब मेरे फादर रवि को मैं बोलता था गवि, रेनू गेनू, रिधिमा मेरी छोटी बहन गिधिमा, और हमारी दादी का नाम था राज रानी मलिक, तो मैं उनको गाज गानी मलिक बोलता था. एंड दिस वाज अ बिग चैलेंज बिकॉज पंजाबी फैमिली, डार्क कॉम्प्लेक्शन, अभी तो फिर भी हाइट थोड़ी ठीक हो गई है. उस टाइम पे मेरा वजन था कोई 38-39, मतलब स्कूल में सबसे सुकड़ा, सबसे ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन. मेरी दादी माँ सुबह सुबह है ना, जॉइंट फैमिली में रहते थे, पाउडर लगा के भेजती थी. एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग, आवर सोसाइटी फोकसेस अ लॉट ऑन लुक्स, आवर सोसाइटी फोकसेस अ लॉट ऑन अपीयरेंस, एंड दिस इज फॉर ऑल द वुमेन आउट हियर एज वेल, एंड ऑब्वियसली फॉर एवरीवन. इट डज नॉट मैटर. And this is something that now I realize. बचपन में ना तोतला था तो कम बोलता था, बिकॉज डर लगता था कि यार कहीं र ना निकल जाए. और हिंदी में अगर आप हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में देखें तो र बहुत ज्यादा यूज्ड अल्फाबेट है. तो हमारे पास, जब मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो हमारे पास जब पहली बार पैसा आया तो पापा ने कहा कि हम लोग गाड़ी लेंगे. मैंने कहा ठीक है. हम सेकेंड हैंड गाड़ी लेने गए. तो हमारे उस टाइम पे 2001 की बात है, नई नई गाड़ी आई थी शेवरोले ऑप्ट्रा. तो हम गए, तो उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी लेनी है? मैंने कहा शेवरोले ऑप्ट्रा. तो कहते ये कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा शेवरोले ऑप्ट्रा नई आई है, गेट कलर की. कहते क्या? उसके चक्कर में हमने होंडा सिटी ली सेकेंड हैंड. जिस शब्द में र नहीं आता था ना, मैं उन शब्दों की लिस्ट बनाता था और कोशिश करता था सिर्फ वही शब्द यूज करूं. अब स्कूल में लोगों को पता चलने लगा, तो और मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था बिकॉज पीछे वाले बच्चे मेरे को बुली करते थे. तो सब लोग सुबह सुबह होमरूम पीरियड में आते थे और पूछते थे मदर का नाम क्या है? मैं बोलता था गेनू मलिक. तो फिर सब हंसते थे. मैंने कहा ये तो बड़ा मसला है, मतलब ये तो जीवन भर चलेगा क्योंकि बोलना नहीं आता.
उसके साथ साथ बुली होना चालू हुआ. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम डीपीएस मथुरा रोड और डीपीएस एज अ ब्रांड. एंड वहां पे है ना अब बहुत फाइट होती थी ऑन बुली. एंड तीसरा हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है विच स्टेम्स फ्रॉम समथिंग कॉल्ड बॉलीवुड. हमें है ना बचपन से ये बताया जाता है कि यार लड़की पटानी है. एंड it's something which is very common, like बचपन से. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे ना जो हीरोज थे, चंद्रचूड़ सिंह को ऐश्वर्या राय मिल जाती थी. तो आपको लगता था यार रितेश, चंद्रचूड़ को ऐश्वर्या मिल सकती है, तेरे को क्लास की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती है. तो और कॉन्फिडेंस है ना, मतलब वैसे ही बहुत कम होता था. तो क्लास में एंड देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, that all these challenges, slow, steady, all these challenges make you. And then the last challenge was, which is called the Asian parent syndrome. I don't know, I am 89 born, so I'm 34 now. मेरे पापा और मॉम दोनों डॉक्टर हैं. हमारे परिवार में 37 डॉक्टर हैं. हमारे परिवार में डॉक्टर ना बनना क्राइम है. I was so focused. My grandmother said, if you will not become a doctor, I will not eat food. They were so focused. उन्होंने मेरी 11th में मैथ्स हटवा दी. They said आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बनना है. तो मैं डॉक्टर बन गया. I realized now when I look at all those things, I realized our childhood, all of us, our childhood has been fucked up royally. What happens is that बच्चे का confidence, and this is something that now I'm learning, pardon my language, but now I'm learning how not to actually make sure that my daughter does not go through the same phase. And this is for all the young parents. The job of our education system is so wrong you can't even imagine. 1.5 million engineer जो हम निकालते हैं, 65,000 employable हैं. 10% of the lagging engineers of our country work in menial jobs as receptionists, as housekeeping in charges. And that is the sad part. And there is a reason and pattern because of which this happens. The first one is we are not taught value sciences. We are not taught change management. We are not taught basics of how humans should conduct themselves. And this I learned when my daughter, मेरी जब बेटी प्री स्कूल गई तो पहले 2 हफ्ते पेरेंट को जाना होता है. हमारे घर में मेरी वाइफ एम्प्लॉयड है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो इसलिए मैं चला जाता था. अब हुआ क्या, वहां गया ना, आई रियलाइज बेसिक्स किंडरगार्टन में आते हैं. मेक अ लाइन. हिंदुस्तान के अंदर कोई लाइन नहीं बनाता. आप इंडिगो, मेरे को अभी है ना शिरडी जाना था, इंडिगो में 4 लाइनें बनी हुई. मैं अपना तमीज से लाइन में खड़ा हुआ हूं आधा घंटा पहले, मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ. 3 अलग अलग हेड आ गए, उन सबके पीछे लग गया और मेरे को फाइनली लास्ट में एंट्री मिली. द थिंग इज दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स एंड दीज थिंग्स क्रिएट ट्रस्ट. By the end of the day, most of your wealth creation, and not money creation, wealth is a very separate concept. Wealth creation will come by building trust. I'm a vegetarian. I spend a lot of time outside India. So whenever I go to China में जब मेरे को एक येलो कलर का M दिखता है ना, oh my God, I have a Pavlovian response. And I just feel so happy कि यहाँ पे वही फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे जो मेरी पूर्वी दिल्ली की, I stay in East Delhi, V3S मॉल में मिलते हैं. वही सेम फ्रेंच फ्राइज, सेम हाइट ऑफ द फ्रेंच फ्राइज, सेम कलर, सेम टेक्सचर. दैट इज ट्रस्ट. एंड ट्रस्ट का एक फॉर्मूला है. द डे यू स्टार्ट लर्निंग ट्रस्ट, पीपल थिंक फॉर बिकमिंग ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर्स यू नीड टू हैव स्किल्स. You do, but the biggest skill that you need to have is building trust. And trust is a mathematical formula. It's called the Trixie phenomenon. Trust is equal to reliability into intimacy into credibility divided by self-interest whole square consistency. And I'll tell you, reliability is your skill. What do you do? What is that one thing that you do extremely well? Intimacy is how you talk, your ability to develop neuro-linguistic programming with another human being. Credibility is what people say behind your back. That is very important. अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपसे मैं पूछूंगा कैसे बोला, अबे यार क्या बोलते हो, मैं जैसे ही बात कहूँगा अरे क्या बोर किया, सैटरडे आफ्टरनून खा गया. Credibility is very important. What people say about your back.
95% of business success is credibility divided by self-interest. Self-interest is important, but it should not be so much that people just do business once with you. And हमारा business है co-working बनाने का, तो हम लोग बहुत सारे contractors के साथ काम करते हैं. हम सब contractors को कहता हूँ, मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ. या तो मुझे तू एक बार काट दे, वापस कभी सोने के अंडे नहीं मिलेंगे, या मुझे कम दाम दो और डेली मुझसे अंडे दो. Self-interest needs to be controlled. And the last part, which is the most important, is understanding compounding and consistency. Doing this over and over and over and over again, that will lead to trust. So I asked my dad, I said, do you trust me? He said, with all my heart, you're my son. Why would I not trust you? I said, would you allow me to do a heart surgery on you? कहता पागल हो गया क्या? तू तो वैसे ही आधा बड़ा डॉक्टर है, मतलब बड़ी मुश्किल से तो तूने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट किया, तेरे को सर्जरी और हार्ट और ये सब का क्या मतलब? मैंने कहा, while you trust me, my reliability in doing a heart surgery is this. That is why you don't want me to touch your heart. While my intimacy is very high, my credibility in doing a heart surgery is this. While my self-interest is low, but still my father does not trust me. Today, if I ask you, do you trust me with co-working? You will say yes, because my credibility, intimacy, my reliability is very high. So my submission is focus on trust. You will be shocked. Most of the sales in the world, and sales now, again, I'm sorry, I just speak a lot, but please go ahead. Sales is one thing which has, हमें ना बचपन से schools और घर में बताया जाता है कि sales की नौकरी बेकार नौकरी होती है. हमेशा, we have always been told. मेरे फादर के क्लिनिक में जो एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको 1.5 घंटा है ना धूप में बाहर बिठाते थे. And I realized that sales people are looked down upon in our society. I said, that's like so weird. Sales की वजह से हम सबके किचन चलते हैं. Sales is the most important skill to learn, even more than product. Great product is a sanctity, but when sales is great, mixed with a decent product, magic happens. I always tell this, distribution is demigod. Distribution will win everything in the world. आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, कुछ नहीं कर सकते. So I am a firm believer of the fact that how I manage those challenges. The first one is बड़ा मुश्किल था. It's called the DVD, the developmental verbal dyspraxia. बहुत लोगों में होता है, वो नहीं बोल पाते. वो हर बात पे, तो मैं अगर मैं ऐसे ओरिजिनली होता तो मैं ये बोलता, हग बात पे वो नहीं बोल पाते. Now how I managed that was, there's an exercise called, and उसका ना आपको साइंस पता. Okay, this is very interesting. अगर आप डायग्नोसिस करने लग गए ना, आप जीत जाओगे जीवन में. आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, सिर्फ डायग्नोसिस की वजह से आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. तो मैंने ना ये स्लो थिंकिंग का प्रोसेस सीखा, एंड दैट वाज just sit with your problem and fight with the problem with your mind. Write it down and do diagnosis. मेरी प्रॉब्लम ये थी, बोलने के लिए I can challenge all of you. You cannot say R without putting your tongue on the upper palate. जो आपका upper palate है, उसके आप जीभ को जब तक upper palate के साथ नहीं जोड़ोगे, आप नहीं बोल सकते. ये मेरा प्रॉब्लम था, ये पता चल गया. मैंने कहा यार, ये तो बड़ा मतलब सिंपल चीज है, इसमें क्या है. और उसके बाद एक एक्सरसाइज है, and that is do it every single day. It starts with and then it goes and slow and steady. Today you can come here and fight with me. You cannot speak R better than me. My wife's name would have been Shruti. Now I call her Shruti. So and I realized there are certain challenges. हम सब में है ना कोई डेफिशिएंसी है. जब तक आप उसको फंडामेंटली ठीक नहीं करोगे ना, और हम सबको पता है हमारी डेफिशिएंसी क्या है. मैं अपनी मॉम से पूछता था, मैंने कहा मम्मी मैं र को ग बोलता हूँ क्या? कहती पागल है क्या, तेरे स्कूल वाले ऐसे वो तेरे से चलते हैं, तू तो बिल्कुल ठीक बोलता है. मैंने कहा माँ कह रही है, माँ को तो अपना बच्चा ऐसा लगता है कि बस यही ऋतिक रोशन है. My mom loves me, and like मैं अपनी दादी से पूछता था, कहती ये एमी मुंडे तेरे तो चलते हैं. In Punjabi she said that they don't like you. And every single day I realized one thing, accepting truth. Amor fati, which is accepting your fate,
trying to change your fate is so important. Yourself, whatever you can, so important. And the last piece is, मैंने बॉलीवुड सिंड्रोम के बारे में बोला, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ जब मैं तमिलनाडु गया. बॉलीवुड में भी तो फिर भी ऐश्वर्या राय चंद्रचूड़ सिंह के साथ रोमांस करती है. तमिलनाडु में ऐश्वर्या राय गोes to रजनीकांत. एंड यू फकिंग फील दैट रितेश, तू तो यार मतलब भगवान है यहाँ पे, तू शाहरुख खान है तमिलनाडु. And I realized one thing, and that was I proposed 19 girls, honestly, before finally getting married. No one said a yes to me. Good for me, because the 20th one is the most beautiful one. But I'm the best person at heart. But the good part is the try. People don't try. I have seen one thing in me. I try. I don't care. I'm not ashamed of anything. Like, you cannot. It's very hard for me to be ashamed. So I try. If I like someone, I'll go to them and I'll tell them that I really like you. वो मना करे उसका काम है, हमारा काम है कोशिश करना. And people don't try, people don't take action. I can bet 90% of all of us here, including me, we are procrastinating on something. We don't realize we are procrastinating. Something we are procrastinating about. And if you are able to jump that speed breaker now, you will be amazed. You have a very, very beautiful road ahead. Totally. This is so brilliant, by the way. Ritesh bhai, आपको एक बात बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग. So MBA plus business school में ना, we have this very amazing challenge that we kind of went through. तो हमें ये लगा कि जब हम अपने lectures बना रहे थे, right? How do we design our lectures? भाई दुनिया में already इतनी knowledge है. Stanford अपने तरीके से पढ़ाता है, Harvard how kind of you. Thank you so much, Ritesh bhai. Harvard अपने तरीके से पढ़ाता है और IIM, IIT अपने तरीके से पढ़ाते हैं. अब इतनी सारी मैनेजमेंट की एजुकेशन है, तो हम क्या करें? सो वी डिजाइन अ फ्रेमवर्क कॉल्ड QIA. सो Q इज फॉर क्वेश्चन. बाहर की चीजों को क्वेश्चन करो, राइट? सड़कों पे इतने गड्ढे क्यों हैं? भाई बारिश आती है, आपके MLA हैं, आपके MP हैं, आपने सबको इलेक्ट किया हुआ है, बारिश आती है, सड़कों पे गड्ढे होते हैं, लोगों की जान जाती है, क्यों जाती है? इट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क. इतना पोल्यूशन है तो भाई क्यों है, राइट? I stands for इंट्रोस्पेक्शन, कि आपने बाहर तो सवाल कर लिया, अब अपने आप से सवाल करो. आपके पास क्या वो क्रेडिबिलिटी है? आपके पास क्या वो कंसिस्टेंसी है? आपके पास क्या वो स्किल्स हैं? आपके पास क्या वो विश्वास जनरेट करने की ताकत है, कम्युनिकेट करने की ताकत है? तो आई इज फॉर इंट्रोस्पेक्शन. नहीं है तो क्या आप वैसे लीडर हो जो अपने आसपास एक संगत बना सकते हो? यू कैन सॉर्ट ऑफ बिल्ड अ कम्युनिटी टुगेदर, व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट जस्ट अ व्हाइल बैक. फाइनली A इज फॉर एक्शन, जो भी रितेश भाई ने बोला. Actually, Ritesh bhai, in my personal life as well, I realized, so I come from a very middle class background, just like you, teacher family. पिताजी ने 35 साल हिंदी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में. My mother hails from प्रयागराज in उत्तर प्रदेश, पापा hails from पंजाब, right? और सेम पंजाबी फैमिली, राइट? तो हमारे यहाँ सभी कुछ बढ़िया होता है, बड़ा बड़ा हंसी मजाक होता है, ऑल ऑफ दैट. लेकिन फाइनली एक बात समझ आ गई दैट भाई एक्शन तो लेना होगा. एक्शन नहीं लिया तो बेस्ट मैं जो कर पाऊंगा वो ये है कि भाई परदादा जी प्रिंसिपल थे, दादाजी प्रिंसिपल थे, पापा टीचर है, तो मैं एक बढ़िया टीचर बन जाऊंगा, एट मैक्स लाइक अ ग्रेट टीचर. बट वहां से ब्रेक थ्रूज नहीं क्रिएट होंगे फैमिली में. वहां से मैं अपनी बेटी को वो नहीं समझा पाऊंगा दैट यू हैव टू लेट्स से टीच योर डॉटर व्हाट्स द फ्यूचर, एंड देयर आर पीपल शेपिंग द फ्यूचर नाउ. एंड चेंजेस पता है कहां से आए? जब ये QIA किया. ये इंट्रोस्पेक्शन वाली जो फेज होती है ना, ये बहुत टफ होता है. बाय द वे, जो अभी रितेश भाई बोल गया ना, आई वांट यू गाइस टू लिटरली, कभी आपने फिल्मों में देखा है कोई चीज मूव करते करते एकदम पॉज हो जाती है, रुक जाती है? अभी अपनी लाइफ को रोक लो एक सेकंड के लिए. आई एम नॉट किडिंग यू. इन्होंने जो बोल दिया ना एक सांस में, लाइक दैट, ही इज इंटरनलाइज्ड इट. That's why he could just speak it like that. It's not the fact that he's a great speaker, that's why he spoke it like that. He's internalized every word of it. Don't procrastinate. Take action. उसका ना एक कारण है. देश भाई, मैंने ना आपसे एक चीज सीखी और बहुत अमेजिंग चीज सीखी. टाइम वर्सेस डिसीजन मेकिंग. एक चीज जो मैं हमेशा आपको नोटिस करता हूं, एंड प्लीज डू टेल मी इफ आई एम रॉन्ग और राइट देयर, व्हिच इज आप ना बहुत you think faster than fast. And why so? Whenever I met you, you're consistently on, right? On, literally on. आपने जब अपनी लाइफ को डॉक्टरी से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जाने का सोचा, आई एम श्योर देयर वुड नॉट बी मेरे बेटे ने सबसे अच्छा डिसीजन लिया है अपनी जिंदगी में.
So family would have, of course, said a lot more to you. But what happened to Ritesh that you started Innovate? What was that clicking point? आपने क्यों वो decision लिया? Ritesh ने Innovate क्यों start किया? So this is very interesting. Another mental model of philosophy. A lot of people don't realize philosophy. It is the most important science in the history of all sciences, and we are never taught philosophy in schools. We're never taught philosophy. The premium philosophical mental model is logos. Logos means meaning. We are driven by the meaning of our life. There is a survey which states that people do not want a comfortable life. Most of the people who are depressed are not depressed because of money. Depression is an illness of the rich. They are depressed because they do not have the meaning of their life. And if you just internalize it, it's very powerful. I'll tell you, this is my personal story. I don't know whether this will go online or not, but this is a very confidential story. After selling the business, I got money. I saw money for the first time and I was like, shit man, what do I do with the money? And I thought now I'll be happy. I thought it will be like so cool. Like now I never have to work for anyone in this world. And after 15 days, I started being sad. And I was amazed. I said to myself that Ritesh, this is what you wanted the whole of your life. You wanted to make money. And why the hell are you sad now? Happiness is not a function of money. What is the meaning of your life? You'll be amazed with what all adversities you can go through. Every challenge becomes small if you have realized the meaning of your life. Now the question is, हमें कैसे पता चलेगा what is the meaning of your life? And this is where education comes in. The true purpose of education, as Aristotle said, is ability for a child to come out with his or her meaning of life. This is called logotherapy. ऐसी कौन सी चीज है, एंड हम सब लोग एज अ डॉक्टर आई टेल यू, हम सब लोग अलग हैं. जो चीज मुझे मोटिवेट करती है वो आपको नहीं करती होगी, जो आपको करती है वो मुझे नहीं करती होगी. Our brain prints are a million times more sensitive than our fingerprints. Now what do we do? How do we get to know कि हमारे बच्चे का या हमारे खुद का meaning of life क्या है? I was having a candid discussion with Madhuri ma'am. I have a lot of respect for her. I asked ma'am, I said, like, what makes you like so good? Like when she dances. By the way, Madhuri ma'am is Madhuri Dixit Nene in this. And when she dances, oh my God, it's effortless. And for me, that is logotherapy. When you start doing something where it starts feeling meditation, you don't need to meditate by staying silent. When I built Innovate, when I built offices, it was meditation for me. Oh my God. It was height of orgasm for me. It was deep sense of purpose for me. And I'll tell you how I came to, and I'll tell you how to make an understanding of your meaning of life. I started my first startup and that was average, wasn't that great, wasn't that bad. But while doing that, I realized that every founder is going through struggle of offices. I used to spend a lot of time in Starbucks. And जब पैसा नहीं होता तो आप Starbucks में है ना कॉफी लेते हो, लेकिन 2 घंटे के बाद जाके, ताकि पहले बैठ गए, पूरा का पूरा मैं अपने बैग में है ना एक एक्सटेंशन कॉर्ड लेके आता था. वो अपना पूरे मतलब अपना लैपटॉप लगाया, वो पूरा अच्छे से बैठा. 2 घंटे के बाद हम लोग एक जो सबसे सस्ती वहां कॉफी होती थी वो ऑर्डर करते थे. फिर 2 घंटे वहां पे आराम से सिप करके पीते थे. ये पैटर्न हैमिल्टन हाउस में सीपी में नया स्टारबक्स खुला था ब्लॉक ए में. And when this started happening, barista started noticing. He said, this bugger comes every day, has the least amount of coffee, never eats anything, and takes my cover for 4 hours. और एक सीट पे बैठता था जिसमें 2 सीटें होती थी. And वो लोग वहां पे उस टाइम पे वेट कर रहे होते थे because Starbucks was a phenomenon there. And I realized, what if? And वो ना एक दिन आया कहता कि सर यहाँ पे आप एक्सटेंशन कॉर्ड मत लगाइएगा. And I am a very egoistic person. मैंने कहा तूने मेरे को मना किया. And then I realized, what if I am able to create an office like Starbucks, which is 24/7,
which has phenomenal coffee and an amazing community, and जब आना है तब आओ, और आपके जैसे लोग होंगे, कोई आपको मना नहीं करेगा। और आपको है ना ऑफिस में, जो हमारा पहला ऑफिस हमने दिया ना नोएडा सेक्टर 63 में, अभी तो बहुत डेवलप हो गया, उस टाइम पे ये कोई हापुड़ का हाईवे कुछ नहीं था। वहां पे पहुंचने में बीच में गौ माता बैठी होती थी, 1.5 घंटे के जैम लग रहे होते थे। एंड आई रियलाइज्ड bloody going to office should not be this hard. It should be near a metro station. Almost 15 से 16 घंटे लाइट नहीं आती थी। Most of the job was very जनरेटर को खींचना, पानी नहीं आता था। And like just imagine, this is 2012. मैं गंगाराम में जूनियर सर्जेंसी कर रहा था, पानी नहीं आता था। उन्होंने हमें कहा हुआ था कि आप 12 से 1 बजे लंच कर लो। मैंने कहा क्यों? कहता 1 बजे के बाद पानी नहीं आता। मैंने कहा व्हाट द फक मैन, मतलब पानी तो इट्स अ वेरी, उस टाइम का उत्तर प्रदेश है, अभी तो चेंज हो गया। The whole idea was, and I said that what if we create an office wherein हमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़े लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड से कोई लड़ाई ना हो, वो पे पर सीट जितना आप यूज कर रहे हो सिर्फ उतना पैसा दो और अपने जैसे लोग से मिलो। नहीं तो है ना अकेले है ना मैं बड़ा परेशान हो जाता था यार, शिट मैन, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं मिलती थी। एंड पुदार साहब मुझसे अग्री करेंगे, he was a part of our first innovate, and I realized one thing that if you, तो that became my calling of life। I said कि यार आप लोग ये देखो, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो, एंड ये ना मैं हमेशा, so I go to a lot of schools, तो मैं गया एक स्कूल में 1000 बच्चे थे, उनके पेरेंट्स भी थे, तो उन्होंने कहा आपने पैशन की बहुत बात की, how do we know that our student is passionate about something? I said, the first thing about our schools is as follows, and no offense to any teacher, I have a lot of respect for teachers, but हमारे देश में जो कुछ नहीं बनता वो स्कूल टीचर बन जाता है। And this is the sad part of our, जिस देश के अंदर हमारे टीचर्स की सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, डॉक्टर्स एंड टीचर्स, जिस देश के अंदर इनकी सैलरियां कम है ना, वो देश धीमे धीमे ना डिक्लाइन पे जाएगा। वो आर्टिफिशियली उनकी इकोनॉमी बढ़ा दोगे, आप मार्केट बढ़ा दोगे, बहुत कुछ कर दोगे, until and unless we focus on our teachers and healthcare। ये 2 रीढ़ की हड्डी होती है इकोनॉमी की। एक बुक है, you must read Why Nations Fail। Oh my God, it's amazing, and that states education and healthcare, the largest industry in the world is agriculture, the second largest is healthcare, the third largest is retail, fourth largest is education। तीसरे को आप छोड़ दो, ये तीनों में आज तक कोई इनोवेशन नहीं हुआ। ये जितनी इनोवेशन हो रही है ना, इट इज ऑल टॉपिकल इनोवेशन। वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट आवर फ्यूचर इज रन बाय पीपल हु आर मैसिव फेलियर्स इन लाइफ, हु डजंट बिकम एनीथिंग बिकम्स अ स्कूल टीचर। मैं हमेशा से ये सोचता था मेरी स्कूल टीचर का मेरे लिए ओपिनियन अच्छा नहीं है, एंड मेरे को है ना लगता था कि यार मेरे में ही प्रॉब्लम है। अब जाके रियलाइज हुआ यार वो तो उसकी प्रॉब्लम थी, वो बेचारी अपने घर में है ना, वो मेरे को थप्पड़ मारती थी, मेरे को 11वीं कक्षा में ये तमाच का थप्पड़ पड़ा था। एंड मैंने कहा यार वो बेचारी फ्रस्ट्रेटेड है अपने घर से, उसको काम नहीं आता, उसको पढ़ा, उससे मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने मेरे को फेल कर दिया मंडे टेस्ट में। एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग, दैट आवर सोसाइटी इज बीइंग रन एट टाइम्स बाय मोरॉन्स। Make sure that your confidence should not, मेरे को है ना 26 की उम्र में पता चला कि यार रितेश तू तो है ना बारूद है, तेरे में पावर है यार, तेरे को आज तक जितने लोगों ने जो बोला ना सब गलत था। Every one of us is just one action away from demigod level। ये मेरा अपना मानना है, मतलब I have a very deep conviction on the fact that humans can do anything that they like if they take action। The challenge is 95% of the world thinks through their life with so, कहता सबसे ज्यादा आइडियाज कहां पे हैं, वो कहता कब्रिस्तान में, कहता क्योंकि लोग एक्शन ही नहीं लेते उन आइडियाज के ऊपर। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय बैचमेट, आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर माय बैचमेट्स, बट द ओनली डिफरेंस इज द फैक्ट दैट आई टुक द रिस्क। टेकिंग रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ लाइफ। एंड आपको है ना बार बार रिस्क कहेगा, डराएगा, कहेगा मत लो यार नहीं हो पाएगा। वो आपको हमारा ना माइंड, ओके अगेन हम जानवर हैं, हम जानवरों से आए, हमारा जो माइंड है ना वो हमेशा हमारे को है ना सेफ्टी की तरफ लेके आने की कोशिश करता है।
जैसे ही हिरन को शेर नहीं भी दिखेगा, उसको जरा सा कोई आवाज भी आएगी ना, वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको है ना सेफ्टी। अब हो क्या गया, लेकिन अब हमें ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हिरन की तो मजबूरी है, अगर बाई चांस उसने खा गया तो वो मर जाएगा। बट आज हम एक ऐसे एरा में हैं जहां पे हम ना रिस्क लेके फेल भी अगर होते हैं तो मरेंगे नहीं। तो वी नीड टू चेंज आवर कॉग्निटिव बायस, embrace uncertainty. We are in the most uncertain times we will ever be in. The only way out is to take risks, and by taking risks I can tell you one thing, what is, and this is something that I have traversed. By taking risks, two things happen. One, you will start becoming very bold, because driving uncertainty, again last point before I shut up, I always tell people, आप ये बताइए, जब आप जहाज में जा रहे होते हैं, थोड़ा सा टर्बुलेंस होता है, तो आप क्या करते हैं? सीट बेल्ट लगाते हैं। अब आप सोचिए, जहाज चल रहा है, थोड़ा सा टर्बुलेंस हुआ और एकदम से जहाज नीचे गिरने लगा, फिर आप क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं, राइट? नाउ द गुड पार्ट ऑफ लाइफ इज वी आर नॉट अ पैसेंजर इन दिस लाइफ, वी आर द पायलट। पायलट क्या करता है? पायलट जब टर्बुलेंस आता है, उसकी पहले से सीट बेल्ट बंधी हुई है, वो है ना अपनी ग्रिप टुवर्ड्स हिज कॉकपिट, टुवर्ड्स हिज जॉयस्टिक्स, टुवर्ड्स हिज जो भी वो पकड़ते हैं, वो उसको और स्ट्रॉन्ग करता है, वो है ना नेविगेट करता है उसको बड़े तरीके से, ताकि है ना और टर्बुलेंस का इंपैक्ट ना पड़े। जब वो और गिरता है, वो क्या करता है? वो और उसको कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करता है। दैट इज ह्यूमंस। द चैलेंज इज आवर सोसाइटी फोर्सेस अस टू बिकम अ पैसेंजर। हमें ना ये बताया जाता है कि यार तुम पैसेंजर बन, शुरू से स्कूल का भी है ना, मैंने ये देखा, सब लोग ये कहते थे कि यार मैं IIM अहमदाबाद गया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम देयर, आई शुड नॉट बी नेमिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस, बट I went there and I said, how many of you want to become entrepreneurs? 3 hands. I said, dude, IIM अहमदाबाद के बच्चे entrepreneur नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? And I realized one thing, mental wiring is IIM जाओ salary लो, IIM जाओ salary लो. You never create wealth with a salary. Most of us will never create wealth. Inflation ही मार देगी आपको. You will create wealth by creating ideas, by focusing on the meaning of your life. My submission to each and everyone here is write down the meaning of your life. और मैं आपको बताता हूँ लास्ट पॉइंट कि पता कैसे चलेगा मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। मैं हमेशा टीचर्स को बोलता हूँ, आप ना सारे बच्चों की किताबें ले लो, पहले पेज पे सब लोग अपने भगवान को, ओम, जो इस्लाम को याद करते हैं, वो सब अपना वो लिखते हैं। हमें शुरू से बताया जाता है कि डर के चलो, तो हम लोग उसके बाद हम लोग पहले पेज पे ऐसे लिखते हैं जैसे मोती हो, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, अलग अलग पेन्स। धीमे धीमे जब नोटबुक पुरानी होती है ना, हमारे ना वो डॉक्टर की हैंडराइटिंग बन जाती है। यहाँ पे कहीं पे भी आपका पैशन नहीं मिलेगा, आपको पैशन मिलेगा लास्ट पेज पे। जो टीचर वहां बकवास कर रही हैं, रिस्पेक्टेड टीचर जो वहां बकवास कर रही हैं, जो बच्चा है ना, आपको पता नहीं चलेगा, वो सबकॉन्शियसली बच्चा कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई बच्चा गाड़ी बना रहा है, कोई बच्चा एटम बना रहा है, कोई बच्चा लेगो बना रहा है। व्हाट यू डू, आप ये देखो कौन सी ऐसी चीज है आप सब में, हम सब बच्चे हैं, हम सब जानवर हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कोई ऐसी चीज, मैं आपको बता दूं, अनफॉर्चुनेटली माय सिस्टर इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम हेल्थ वाइज। मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, मैं दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बनाई अभी, इससे पहले मंदिर से ही होके आ रहा हूँ। पारितोष भाई ने कहा, मैंने कहा जरूर आना ही आना, मंडे को उसकी सर्जरी है। नाउ व्हाट हैपेंड, व्हेन आई एम डूइंग दिस, आई हैव नॉट थॉट अबाउट हर, दिस इज माय मेडिटेशन। I genuinely have not thought. And I realized one thing, teaching is my passion. I am a phenomenal teacher because this is not just being confident, but I just love doing that. हम लोग एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, we are a group of trustees, and I realized that is the meaning of my life, helping people stay away from books and stay near to knowledge that is life, that is practical. हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं 2020-2010 की कहानियां। हम अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ा रहे कि 2060 में क्या होना। ये लास्ट पॉइंट है बिफोर आई शट अप, एंड दैट इज दैट द ट्रू पर्पस। मैं आई विल नॉट नेम द इंस्टीट्यूशन, मैं इंदौर गया,
मैंने वहां पे आई हैव अ वेरी बैड हैबिट व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग आई कैन नॉट कंट्रोल एंड बिकॉज ऑफ व्हिच आई ऑलवेज लैंड ऑन इन ट्रबल। मैं इंदौर गया, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उनके मालिक से के साथ बैठा, तो वहां पे बोलने गया, तो जब बोलने गया तो एंड यू शुड नो आई सक एट पब्लिक स्पीकिंग, लाइक क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं बोल ही नहीं पाता था। सो मैं बोलने गया इंदौर, तो उनके एमबीए के स्टूडेंट्स थे शायद 1,500 बच्चे एंड आई वाज नर्वस एंड दिस इज लाइक लॉन्ग टाइम बैक। कहते आपको पता है रितेश जी, हमारा इंस्टीट्यूट इस वक्त नंबर 1 पे है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने कहा व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड मेरिट दैट यू से दैट यू आर डूइंग दिस। कहते हमारे, वो एकदम है ना, सामने हिंदुस्तान टाइम्स दिया, कहते इसको खोल के देखिए। तो हमने खोला, बच्चों की है ना गधों की तरह फोटोएं लगाई हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है टीसीएस, नीचे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, नीचे लिखा है। तो मैंने कहा इससे मैं क्या करूं? कहता हमारे बच्चों का पैकेज, उसके नीचे पैकेज लिखा हुआ है। कहते ये बच्चा 35 लाख, आप सोच रहे हैं? कहते ये बच्चा 26 लाख, आप सोच रहे हैं? मैंने कहा बहुत अच्छा है ये तो कहते मतलब आपका, कहते जितने बच्चे हमारे यहाँ आते हैं हम सबकी नौकरियां लगवा देते हैं, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो मेरी एक नेचर है, मैं बेवकूफ को कभी नहीं बताता कि वो बेवकूफ है। तो मैंने कहा सर बहुत अच्छा है, मैं ताली मार के साइड निकल लिया। And then I realized that is the sad part of our education system. Our metrics are wrong. The true purpose of education is as follows in my mind. Can I help inculcate one thinking process, mental model or framework in my student which she or he can use when I am not alive? If I am able to do that, I have won as a teacher. Can I help you? And most of the things that you are learning today are short-lived. आज आपको ये रास्पबेरी पाई, कोडिंग, ये सब सिखाएंगे, ये सब बदल जाएंगे 3-4 साल बाद, फिर आपको कोई नई चीज सीखनी पड़ेगी। मेरे लिए एजुकेशन इज अ जनरलिस्ट फिनोमिनन। टीच मी समथिंग which will not get outdated in my life. And those are what? Fundamentals of life, fundamental sciences: honesty, trust, sales, product building, thinking, and how do you build wealth, health, and I think those are the things that we need to teach more and more, and that is why platforms like what Paritosh bhai is running are going to be relevant going forward, because unfortunately हमारे देश के अंदर, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट हमारे देश के अंदर, स्पेशली इस गवर्नमेंट को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमारे देश के अंदर यूएस का हेल्थ केयर बजट इज 21% ऑफ देयर जीडीपी, इंडिया का इज अंडर 2%। हमारा जो एजुकेशन बजट है, and you are like very fortunate, you are in the most premium institution. हमने अपनी MBBS की थी टेनी नाम के गांव से, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में है, वहां पे 90% लोग चप्पल नहीं पहनते। And I realized one thing, that education and healthcare, and अगर आपको true wealth कमानी है ना, wealth का मतलब money नहीं है, wealth is impact, money, health, social reputation, a lot of 7 or 8 things। अगर आपको कमाना है ना, agriculture, हेल्थ और एजुकेशन में ट्रू रेवोल्यूशन आप ले आओ, leveraging technology, you're going to make money in, I'll shut up now. you know what, you by the way, before I move on to the next stage, मैंने प्रॉमिस किया था ना, आप लोगों ने इससे पहले इतना खुल के और इतनी ऑनेस्टी, sheer ऑनेस्टी से शायद ही किसी को सुना। A huge round of applause for it. बहुत आसान होता है माइक पकड़ के अपने शब्दों को कंट्रोल करके सेम वही बातें बोलना जो दुनिया बोलती आई है। इट इज वेरी वेरी इजी बाय द वे टू डू, राइट? लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब आप एक सर्टेन ओहदे पे होते हो, एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट से होते हो और दुनिया के सामने होते हो, ऐसा बोल पाना, राइट? एंड दैट इज व्हाई। अब आप लोगों को एक बात समझ आई। मैंने पहला जब सवाल किया रितेश से, वो रितेश के पास्ट को जब हम अनबंडल कर रहे थे, द रितेश ऑफ द पास्ट, राइट? मेरा पहला क्वेश्चन किस पे था? ह्यूमिलिटी पे। रिमेंबर? आपने देखा सेम वही पैटर्न चलता आ रहा है अब तक, राइट? सो रितेश भाई, ये तो बात हमें समझ आ रही है, आपने इनोवेट शुरू किया है, एंड कैसे एक शेयर सपने से शुरू किया। एक सपना जब हम सब लोगों का रुक जाता है,
सपने बहुत आते हैं लेकिन रुक जाते हैं, और वो आता है यार पैसा नहीं। मेरा ऐसा मानना है फंडामेंटली, राइट, और मैं आई वुड लव फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ से कि आपको क्या मानना है इस बात पे। मुझे लगता है पैसा ना होना इज अ बहाना, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। आई डोंट कम फ्रॉम मनी, आई डोंट कम फ्रॉम वेल्थ एट ऑल, राइट, लेकिन आई कम फ्रॉम अ शियर थॉट कि जीरो पे भी रख दोगे ना, मैं वापस तो बना लूंगा, ये तो क्लियर है 100%, राइट। क्यों बनाऊंगा? अपने ऊपर विश्वास है, और प्रॉब्लम जिसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरी जान लगा के आत्मा लगा दूंगा उसके अंदर। और मेरा ना एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है उसका, वो ये है कि सरहद पे खड़ा जो जवान है वो आज सैलरी के लिए तो गोली नहीं खा रहा, ये तो बात क्लियर है, इट्स नॉनसेंस टू से, राइट। वो अपने पर्पस में क्लियर है, इसलिए वो गोली खा रहा है देश के लिए फंडामेंटली, राइट, इसलिए वो जान दे रहा है देश के लिए। अगर उसी फ्रेमवर्क को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो 100% है कि कुछ ना कुछ तो फोड़ दोगे। अब आपने जब इनोवेट शुरू किया, आई रिमेंबर वन ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय योर वाइफ, राइट, एंड शी सेड इट वेरी ब्यूटीफुली। शी सेड, मैंने ना रितेश को जिस दिन इनोवेट का पहला सेंटर लॉन्च होने वाला था, मैंने इसको रात को 2 बजे के आसपास कुर्सियां लगाते हुए देखा, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब लोग आए तो सब कुछ ना अमेजिंग होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। मैंने जितना आपको जाना है, आप लोगों से कैन आई शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई वेंट टू रितेश's लिटिल गर्ल्स बर्थडे, राइट, वेरी क्यूट, जैसे एक छोटी बच्ची होती है, बहुत बबली, राइट, एंड ऑल ऑफ दैट। और वो एक बड़ी गैदरिंग थी, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि कौन तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे यूनिकॉर्न्स के इवेंट्स कराते होंगे, वो बर्थडे अपने आप में एक यूनिकॉर्न्स का इवेंट था, राइट। नॉट टू से दैट, अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूँ। रितेश और रितेश के पापा, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मैं हमेशा पाँव छूता हूँ, माफी भी मांगता हूँ कुछ बातों की, सो जो मेरे दिल से ऑफकोर्स निकलती है उनके लिए। सो मैंने एक चीज नोटिस की, और मैं और माय वाइफ हु इज आल्सो माय को-फाउंडर अदिति, हम लोग वापस आते आते रितेश भाई एक बात कर रहे थे। थ्रू आउट दैट डे, एंड दैट डे वाज वेरी लॉन्ग फॉर यू, ह्यूजली, you were there with everybody, and then at Ritesh Agarwal's wedding and of course the reception, right, you were there for everyone and for everybody, aap sabke liye the. This might be your superpower, but how do you develop this every time? क्या आपको कभी ऐसा लगता है, या at times do you feel कि यार मैं तो रितेश मलिक, मतलब I've kind of arrived in certain levels, यार मैं क्यों मतलब इनवाइट करके सबको बोलूं आओ भाई स्टेज पे आओ, राइट, मतलब व्हाई शुड आई डू दैट? आई टेल यू वेयर एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम। हम में से बहुत सारे लोग ना रितेश भाई 2 चीजों से अपने आप को रोक लेते हैं। एक थॉट है कि पैसा नहीं है, तो आपने जब इनोवेट शुरू किया तो आपने कहां से वो पैसा, हाउ डिड यू पुट इट ऑल टुगेदर? एंड सेकंड पीस इज, यार नाउ दैट आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, मैं अपना रितेश के प्रेजेंट और फ्यूचर तक पहुंच रहा हूं इन दिस लेक्चर। क्या कभी आपके दिल में आया है कि नहीं यार अब हो गया, लेट पीपल बी, मुझे तो अब वैली जाके वहां के एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे तो अपना आई शुड बी लुकिंग एट द लार्जर देन लाइफ फिगर्स? This is very interesting. How I think about this is, every single day you all are my customers. If I don't add value to your life, you'll fire me. It's Wow. as simple. So if I've come here, I need to ensure that I say something that even if a single thought changes your life, I win. Every single day. मैं आपको बताता हूँ, जब श्रुति, हमारा ना अरेंज मैरिज थी, श्रुति बनारस से है, तो मेरी दादी माँ ने एक ही चीज कही थी, कहते बेटा हमें कुछ नहीं लेना देना, लड़की के पास पैसा है नहीं है, पढ़ी लिखी है नहीं है, हमें सिर्फ गोरी लड़की चाहिए। मैंने कहा क्यों? कह रही ताकि तेरे जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल भुजंग ना पैदा हो। मैंने कहा दिस इज such a character assassination for me. So my grandmother was a very direct person. Unfortunately, I lost her in 2019, and so when I met Shruti, she's like, you've not seen her, she's like really white. So and हमें शुरू से ना, because माइंडसेट में हमेशा ये था कि नहीं यार देखो गोरी लड़की नहीं बन सकती, तो द मोमेंट आई सॉ हर, मैंने कहा ये तो डन है एकदम, मतलब सोचना ही नहीं है। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा क्या पढ़ते हो क्या लिखते हो, एंड लाइक विद इन इट वाज लाइक एक मजबूरी एट फर्स्ट साइट कि वैसे इसको हाँ बोलो, और
नाउ द चैलेंज वाज दैट उसको ये समझाना कि मैं क्या करता हूँ वो बड़ा मुश्किल था. उसके फादर को ये समझाना, फादर इज अ कार्डियोलॉजिस्ट इन बनारस. तो वो आए, बेटे आप क्या करते हो? मैंने कहा हम ऑफिसेस बनाते हैं. कहते अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो? मैंने कहा नहीं नहीं, हम देश बना रहे हैं. कहता कैसे? मैंने कहा हम ऑफिसेस बनाते हैं. कहते किसके लिए? मैंने कहा स्टार्टअप्स के लिए. कहते स्टार्टअप्स क्या होते हैं? मैंने कहा स्टार्टअप्स वो होते हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना बिजनेस बनाते हैं. कहते वो तो ठीक है, आप क्या करते हो? मैंने कहा हम इनके लिए ऑफिस बनाते हैं. तो कहते डॉक्टरी क्यों छोड़ी? मैंने कहा मन नहीं लगा. कहते कितना कमाओगे? मैंने कहा पापा अभी तो कुछ नहीं कमाते, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि इसी से करनी है, मैंने उनको उसी समय पापा बोल दिया. मैंने कहा ताकि है ना एक कॉग्निटिव बायस आ जाए उनके दिमाग में कि नहीं यार लड़का ठीक है. And obviously I was fortunate that he took a bet on me, and by the way good for him, but I just and तब हमारा रोका हुआ. तो रोके के समय नहीं होता था क्योंकि नया नया इनोवेट चालू करना था. तो श्रुति को भी नहीं पता था मैं क्या करता हूँ. तो मैंने कहा तुम एक काम करो, सीपी वाले सेंटर आओ. हमारा लॉन्च होना था 2015 एंड में, और मैंने उसको बुलाया. तो मेरा ना एक फंडामेंटल है लाइफ के अंदर, एंड दैट इज हाउ एवर लार्ज यू बिकम. हम लोग तो खैर कुछ है ही नहीं. हाउ एवर लार्ज यू बिकम, योर मॉर्निंग. हमारे यहाँ पे जब सुबह खुलता था ना इनोवेट, एक एक चेयर, एक एक गुसल खाना, मैं विमेन्स वॉशरूम में खुद जाता था, सैनिटरी नैपकिन्स रखता था वहां पे. एक एक चीज स्पॉटलेस होनी चाहिए. मैंने ना अपने जितने भी हाउसकीपर्स थे ना सबको ये कहा हुआ था कि इतना अमेजिंग गुसल खाना बनाओ कि लोग कहें कि हमें यहीं पर ही बैठ के कोडिंग करनी है. आई जज अ प्लेस बाय इट्स वॉशरूम्स. हमने है ना वॉशरूम्स के अंदर, देवांश को पता है, हमने वॉशरूम्स के अंदर बेसिक चीजें, हमने वॉशरूम्स के अंदर माउथ फ्रेशनर्स रखे हुए. हमने वॉशरूम्स के अंदर मतलब वी यूज्ड टू इंश्योर दैट कस्टमर है ना पागल हो जाए. एंड आई टेल यू, जहां तक पैसे की बात है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल वेंचर कैपिटल फर्म इन आवर कंट्री जहां पे मैं नहीं गया गिड़गिड़ाते हुए पैसा लेने के लिए. सबने मना कर दिया बिकॉज हम लोग है ना थोड़ा प्रॉफिट की तरफ जा रहे थे. तो कहते यार प्रॉफिटेबल थोड़ी ना बनना है, यू हैव टू मेक अ स्टार्टअप व्हिच लूजेस मनी एट स्केल. एंड आई सेड दैट डजंट रेजोनेट विद अस. लाइक अगर कोवर्किंग में भी पैसा लूज करने लग गए तो हमसे बेवकूफ, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है. They said it is not a co-working business, it is a technology business. I said, how so? This is a plain brick and mortar business. तो वो विरोधाभास की वजह से हमारे को किसी ने पैसा नहीं दिया. और एक वीसी अगर आपको मना कर देता है ना, तो एक हिंदुस्तान के अंदर ना वीसीस का माफिया है. सारे इकट्ठे एक दूसरे से, अरे वो रितेश वो डॉक्टर तेरे पास भी आया था, उसमें दम नहीं है, वो प्रॉफिट करना चाह रहा है. तो सबने मना कर दिया. अब I realized one thing, your best customer, your best investor is your customer. Fantastic. आप है ना जिस दिन ये समझने लग गए ना, और हर दिन एक फाइट है. मैं अपनी ना वाइफ को भी अपना कस्टमर मानता हूँ, बिकॉज एवरी डे आई नीड टू क्रिएट वैल्यू फॉर हर. नहीं तो वो परेशान हो जाएगी मेरे से. द डे यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, यू विल बी द हैप्पीएस्ट मैरिड मैन इन द वर्ल्ड. मुझे फ्रेमवर्क मिल गया भाई. मेरे को है ना, हमारे एक बोर्ड मेंबर हैं स्टीव, हमें उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बात बताई. ही इज 86 85 नाउ. he sat on like global boards. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई. मैंने कहा हाउ डू यू मेक अ मैरिज सक्सेसफुल. मैंने कहा कि कहते यू बीन मैरिड. मैंने कहा यस वंस. कहते ओके आई टेल यू द सीक्रेट ऑफ हाउ नॉट टू बी डिवोर्स्ड. आई सेड व्हाट. ही सेड the rule is called the 90-10 rule, which states that you should think that in this relationship 90% of the efforts have to be done by you and 10% have to be done by your wife. हम लोगों को लगता है 50-50 होना चाहिए. हमें लगता है कि नहीं यार 50-50, मैं 50 करूं तो तू भी 50 कर. कहता है the day you start doing this, what happens is you build the most beautiful, and this needs to be done with your customer also. हम कस्टमर के साथ भी ये कहते हैं कि नहीं पैसा दे. तो हमारे पास तो बहुत सारे फाउंडर होते हैं, फाउंडर के पास पैसे नहीं होते. कल हमने इनोवेट सीपी लॉन्च किया, एंड मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं. आई नो वी आर ओवरस्टेपिंग आवर Absolutely, we're not. Go ahead. कहानी ये है, हमने
25 अक्टूबर 2015 में इनोवेट लॉन्च किया, एंड ना मार्केट सर्वे किया ना कुछ किया, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कोवर्किंग प्लेयर्स इन इंडिया। उस टाइम पे गूगल सर्च में कोवर्किंग में कुछ नहीं आता था, लोगों को पता ही नहीं था कोवर्किंग होता क्या है। हमने चालू कर दी, हमने फेसबुक ऐड लगाना चालू किया कि सीट लो 8,000 9,000 में सीपी के अंदर आपको सीट मिलेगी। तो लोगों के फोन आए कि सीट क्या होती है, मतलब सीट कहाँ मिलेगी। हमने कहा हम आपको ऑफिस देंगे। कहते कहाँ पे? मैंने कहा कनॉट प्लेस में। कहते अच्छा आप मतलब हमारे को ऑफिस देंगे कनॉट प्लेस में, कितने का? मैंने कहा 8,000 रुपए का। कहता 8,000 में ऑफिस कैसे मिलेगा? मैंने कहा आप आओ। तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि हम किसी और के साथ काम क्यों करेंगे, कोवर्किंग में तो अलग अलग लोग अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं। उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ये था कि ऑफिस है तो मेरा ऑफिस है, शेयर्ड ऑफिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एंड 3 महीने, एंड आई यूजुअली डोंट टेल दिस टू पीपल, 3 महीने हमारे पास सेल्स ही नहीं है। मैं बड़ा परेशान हुआ, एक तो पापा का प्रेशर, ऊपर से श्रुति के पापा का प्रेशर कि बेटा क्या कर रहे हैं, ऊपर से हमारे जो जितने भी एम्प्लॉइज थे, और डेली सुबह शार्प 8 o'clock मैं अपना राजीव चौक मेट्रो निर्माण विहार से सीधा मेरे को वहां लेके जाती थी, वहां से मैं सीधा आके रिसेप्शन पे बैठ जाता था। अब ये बड़ा मसला हुआ कि यार कैसे सेल लेके आए। तो हमने क्या किया, हमने कहा कोई बात नहीं, हम ना इसको पिवट करते हैं मॉडल को। हमने जितने भी फाउंडर्स जिनको हम जानते थे ना, सब फाउंडर्स को फोन किया और कहा कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट 2 महीने काम करो हमारे साथ। जो स्टॉक्स, style.me, मतलब जितने भी देश के फाउंडर थे ना, जो मतलब वैगाबॉन्ड थे, जिनको वो था, और फाउंडर लालची आदमी है, उसको आप बोल दो ना फ्री ऑफिस है, भाग आ जाएगा। और कनॉट प्लेस के अंदर फ्री ऑफिस है, सब आ गए। अब क्या हुआ, हमने 108 सीटें के ऊपर 108 बंदे बिठा दिए, और हमने कहा इनोवेट तो सोल्ड आउट हो गया, इनोवेट में जगह नहीं है। अब हमारा एड ये हुआ, congratulations to Innovate for selling out, and now the placement will only be by application। लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, जो सीट साला 7,000 में भी कोई नहीं दे रहा था, सब लोगों ने अप्लाई। 809 एप्लीकेशंस आई टू जॉइन इनोवेट। लोग बड़े परेशान, मैं इंटरव्यू लेता था लोगों की, सच में आई यूज्ड टू टेल देम कि नहीं ऐसे नहीं सीट मिलेगी इनोवेट के अंदर, अप्लाई करना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे कि हम आपको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। क्यूरियोसिटी हुई, 16,500 में एक सीट बिकी उसके बाद। एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग, ह्यूमंस आर स्टूपिड, ऑल ऑफ अस ह्यूमंस आर स्टूपिड। एंड I'll tell you, at times we stop realizing value what we have nearby. This is called the availability bias। आप मेरे दोस्त हो, मेरे को लग रहा है पर तो घर का ही आदमी है, मैं किसी और आदमी को इम्प्रेस करने चले जाऊंगा। आपको पता है यार श्रुति तो घर बीवी है, इसका क्या है, ये तो अभी गुस्सा आएगी कल आ जाएगी। हम ना बाहर के लोगों को बहुत इंप्रेस करते हैं, हम ना वो भूल जाते हैं कि हमारे कोर वैल्यू जो हमारे अपने लोग हैं ना, हम उन पे एफर्ट नहीं लगाते। 90% of the results by the end of the day will be in ensuring that your own people are happy, and people are, trust me, people are stupid। Marketing, मतलब मैंने ना ये करके देखा है, then I realized sales is so important because people do not realize। उसके बाद से हमारा मोटो बहुत सिंपल था, सारे इनोवेट हम लोग है ना पहले ही सोल्ड आउट कर देते थे। 50% बेचा सामान सस्ते में, उसके बाद कहा कि यहाँ पे तो आपको सीट ही नहीं मिल सकती है। 1+ when you don't, कोई ऐसी चीज अगर मैं आज आपको कह दूं ना कि आप ये पानी नहीं पी सकते क्योंकि इस पानी के अंदर ऐसे ऐसे मिनरल है जिससे आपको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा, सारे लोग लाइन लगा के आओगे, थोड़ा सा पानी बस एक बूंद दे दीजिए मेरे को। The whole idea is on perception। There is a company called Avian, AVIAAN, ये पानी बनाते हैं, 250 रुपए की पानी की बोतल देते हैं सारे, 250 रुपए। And like water is good, but how good water can be? And I realized one thing as a founder, and the next thing that we did was very interesting। पहला सेल्स लाना ना मुश्किल होता है, अगर आप वहां तक सस्टेन हो जाओ ना पैसा आ जाएगा। हमने ये कहा कि इनोवेट ज्वाइन करो, लेकिन 1 साल का पैसा इकट्ठे देना, वापस तो पैसे नहीं, रेंट के नाले पड़े हुए थे। हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा हमारा देश, अगेन ह्यूमंस आर स्टूपिड, हमारा देश ना पता नहीं क्यों वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ फैंसी फॉर फॉरेनर्स। हमें लगता है कि यार फिरंग है तो बढ़िया जगह है। मैं ना उस टाइम पे सेगवे का जो चाइना वर्जन होती है उसका नाम था एयरबीबी।
हमने है ना सेकंड हैंड एयरव्हील खरीदा 72,000 का, उस पर पूरा इनोवेट की ब्रांडिंग की, इनोवेट के वो, और चाणक्यपुरी एरिया में जितने फिरंग घूम रहे थे ना, सबको जा जाके अतिथि देवो भव, विटनेस एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया, नमस्ते करते हुए सबको हैंडआउट्स दे दिए। शाम को 4 से लेके 7 बजे तक सारे एंटरप्रेन्योर फिरंग छत पे मिलेंगे आपको। कोई, और हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि कोई यूएस से है, कोई कहीं से है, जॉर्जिया, सर्बिया, जितने बेकार मुल्क है ना, सबके फिरंगों को हमने, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती, वो सब फ्री कॉफी के लिए आ जाते हैं हमें। लेकिन जैसी गोरी चमड़ी देखता है ना आदमी, उसको लगता है यार ये जगह कुछ तो हो रहा है, ये जगह ट्रेंडिंग। हमने तो उस टाइम पे तुषार जामिया में एक इंटर्न था, पैसे तो थे नहीं, हमने तुषार को कहा तू आ जा। कहता सर कितनी सैलरी मिलेगी? मैंने कहा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तेरे को, सैलरी नहीं मिलेगी। कहता सर कौन सी अपॉर्चुनिटी? मैंने कहा मेरे साथ काम करने की। तो वो आ गया लकीली, उसको हमने एक कैमरा खरीद के दिया। हमने कहा तू यहाँ पे जो आदमी काम कर रहा है, जैसे आ रहा है, जितने लोग हैं ना, सबकी तू बस फोटोएं ले। अब हमारे फेसबुक ऐड में कोई भी ऐड नहीं चलेगा, हम सिर्फ वीडियोस बूस्ट करेंगे कि लोग फिरंग यहां पे आते हैं। एंड देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट अगेन ह्यूमंस आर स्टूपिड, इट्स इजी टू मेक अ फूल आउट ऑफ देम, बट आप एक ही बार बेवकूफ बना सकते हो, उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ ना, humans are very smart, they will go out. So my submission is learn sales and use disruptive sales methods. हमने जी न्यूज के साथ पार्टनरशिप की, एक बुक क्लब है, उसको हम लोगों ने कहा हम इनोवेट में होस्ट करेंगे। We had 3,500 people waiting outside, पूरा का पूरा रीगल बिल्डिंग के नीचे है ना जमावड़ा लगा हुआ था। And I realized one thing, आपके ना ये 5 या 6 इवेंट्स है ना, हमारे पूरा ब्रांड बना रहे। So I think product में वैल्यू नहीं है। I've realized one thing, it is not the best product that wins, it is the best distribution that wins. And unfortunately हमारे founders ना बहुत अच्छे products बनाते हैं, उनको distribution बनाना नहीं आता। Killer, absolutely. You know, मैं यहाँ पे भी एक वोटिंग करा दूंगा रितेश भाई, कि MBA प्लस के सारे गेस्ट लेक्चर सिर्फ रितेश भाई लेते रहे। आई एम श्योर सारे लोग बोलेंगे यस यस, आई एम श्योर, मतलब और किसी को लाने की जरूरत नहीं है। बस मैं इसके बाद बैठते हैं, मैं आपसे एक इक्विटी वो साइन वाइन करवाता हूँ। सो आपका ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन रितेश भाई अब वो समय आ चुका है जब मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ इन सब लोगों से। बहुत सारे लोग ना पैसा बनाने के बाद एक ट्रेंड है अपने देश में, थोड़ा ज्यादा ये ट्रेंड प्रोनाउंस, राइट, विच इज यार पैसा बन गया तो भाई अपने पास पहले रख लो, है ना, एफडी करा लो कुछ 1 करोड़ रुपए की, और उसके बाद अपनी जेब में डाल लो पैसा, राइट। लेकिन सिलिकॉन वैली जब मैं कहता रितेश भाई, लास्ट स्टार्टअप वहां पे एक्सेलरेट हुई थी इंटेल और बर्कली के द्वारा, बट आई केम बैक। वहां पे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी। तो लोग, आपने भी एक वर्ड यूज किया था for father-in-law, of course, which is he placed a bet on me, literally, and so did your dad, of course, and Shruti as well in many ways. So people there place more bets, whereas we don't, right? लेकिन आप आज अपने कमाए पैसे को खूब सारी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो। जहां तक मेरा थॉट है और नंबर है, करीब 130 स्टार्टअप्स आपकी पोर्टफोलियो में है, आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट में। I've lost track, but I think 150. About 150 स्टार्टअप्स, राइट। तो कोई, इनके पास पूरी चॉइस थी। देखो, लाइफ इज व्हाट, लाइफ इज अबाउट चॉइसेस एंड देन मेकिंग डिसीजंस यार, यही इतना ही सिंपल सा फंडा है, राइट। इन्होंने 150 स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट किया, चाहते तो अपनी जेब में रखते आराम से दुनिया घूमते, राइट। सो रितेश, आपके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, विच इज दैट यू आर अ यंग ग्लोबल लीडर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अभी आप वेफ में थे, यू डिड डिलीवर अ प्रेजेंटेशन देयर, राइट, एंड देन यू वेंट एंड विजिटेड चाइना एज वेल, राइट, एंड देन यू वेंट टू अंटार्कटिका विद द एंटायर एडवाइजर ग्रुप। ऐसा आप वहां क्या देख पा रहे हो जो, what is Ritesh able to see about the world that we are not seeing here? मुझसे क्या छुपा हुआ है जो आपके साथ, जो आपके एकदम सामने है, एविडेंट है यार, ये तो है। सो फॉर एग्जांपल, a lot of people say AI आएगा और जॉब्स जाएंगी, AI आएगी, नौकरी जाएगी। Is that really a reality? Is that something that you're saying? And I'm not just restricting you to AI. I'm saying रितेश क्या देख पा रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे? Okay. After trust, the most important asset for wealth creation is ability to sensitize change before it happens. अगर मैं आपको ये बताऊं कि कल सुबह रिलायंस का
4 भागों में डीमर्जर होने वाला है. The highest wealth creation opportunity comes by information and not by skill. Unfortunately, this is the truth of our debt to true money ratio is 97% today. 97% of all money today is debt in the world. And we don't realize we are living in a very different world that we were living in 2000. If I tell you that Reliance का 4 भागों में डीमर्जर होने वाला है, तो स्टॉक भाग जाएगा. If I tell you that there is a stock in which the stock is doing very well, but उनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी खुल गई है, तो स्टॉक नीचे हो जाएगा. Now it is upon you to take action. Information is, so the first rule is get to the base of information. Information will, and true information. Unfortunately, I called this, and I am not on, like, I am on social media. I am not on social media. I make sure of just one thing. Social media is a whirlpool, vortex, जिसको black hole कहते हैं. आप एक रील देखो. मैं Facebook headquarters में गया, बहुत सीनियर लीडर हैं. I asked him, I said, Facebook is the best technology company in the world. He said, no. Facebook is the best psychology company in the world. Wow. We employ the largest number of psychologists in the world to create product which is cocaine. आप एक रील देखो, आपको है ना वो 13,000 रील दिखाएगा. अगर आपको कोई एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है ना, आप शॉक्ड हो जाओगे. They know you more better than you know yourself. वो आपको सिर्फ वही दिखाएंगे. They create, this is called cocaine products. This is legal cocaine. And it hurts more than cocaine. Because हम इतना समय व्यतीत करते हैं दूसरे लोगों का जीवन देखने में. So my belief is that I think I've forgotten the question that you had, but my belief is that make sure that you have information which can transform your life. And now how to get that information? In my opinion, traveling is the only thing that will help you realize what is going to happen. McKinsey की एक रिपोर्ट है, read those reports. 2030 की एक रिपोर्ट है McKinsey की. It's brilliant. What is going to happen? How AI is going to transform. AI, whether we like it or we don't, AI is going to transform our life. It's very simple. If anyone is ignorant about it, he's a fool or she's a fool. Now the question is, how do we leverage this change? Change is going to happen. How do we leverage this change? In my opinion, there are 3 industries, again to reiterate. Agriculture, दुनिया की सबसे बड़ी, अन्न एक ऐसी चीज है, हम सबके बिना जी सकते हैं, अन्न के बिना नहीं जी सकते. एग्रीकल्चर में मैं बेवरेज को भी लेके आता हूँ. वाटर, आज आप एक वाटर की कंपनी चालू कर दीजिए, you will be amazed. Sustainable agriculture, climate change and interdisciplinary. Climate change with agriculture. Healthcare की आपको पता है what is the, हमें लगता है हेल्थ केयर इज कि मुझे कैंसर ना हो वो हेल्थ केयर है. नो, हेल्थ केयर की WHO की डेफिनेशन है which is so powerful. WHO states health is complete, ये वर्ड सुनिएगा, complete social, mental and physical well-being, and not just merely absence of an infirmity or a disease. Social, mental and physical. हम लोग physical पे तो ध्यान देते हैं. We are the most depressed we will ever be because of Instagrams of the world, TikToks of the world. What happens is we are going into a vortex of comparison. मेरी वाइफ ना, अब मतलब हम लोग जितना घूमते हैं उतना कोई नहीं घूमता. अभी हम चाइना से वापस आए, 4 दिन हुए, इंस्टाग्राम पे किसी की पोस्ट देख के, यार ये लोग हमेशा बाहर होते हैं, इनकी जैसी लाइफ होनी चाहिए. मैंने कहा नालायक, तू 6 महीना हम लोग बाहर रहते हैं. But people do not see their again, please इसको हटा देना, नहीं तो बहुत जूते पड़ने वाले हैं मुझे. और जो यहाँ पे एक्चुअली रिकॉर्ड कर भी रहे हैं वो भी. So please. So people do not see their things. They see कि सामने वाला आदमी क्या कर रहा है. And
And that is the core reason for sorrow. And the next big epidemic is mental epidemic. As a doctor, I can tell you, there are so many founders that I talk to who are in depression, like deep depression. Depression is going to be so high if you are able to do things. तो अगर आप आने वाले 7 साल में मुझसे पूछें, आप है ना, पहले तो इंडस्ट्री सोचिए मत. आप ये सोचो आपका मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, आपको कौन सी चीज पसंद है. इंडस्ट्री तो हो सकता है बहुत सारी, 3 चीजों का मिश्रण होना चाहिए. किसी पेरेंट ने मुझसे पूछा कि मेरे बच्चे को गिटार बजाना पसंद है, उसको गिटारिस्ट बना दूं. आपने कहा पैशन है. मैंने कहा क्योंकि गिटार वाला जो आदमी है ना, उसको 5,000 रुपए मिलते हैं गिटार बजाने के एक रात के. 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. 1, what is it that you are deeply passionate about? What is that one thing? और आप अगर, एंड आपको ऐसे पता चलेगा टीवी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको देख के ना मुग्ध बोध हो जाते हैं. यू गेट इनटू मेडिटेशन. कई लोगों के लिए गाड़ी हो सकती है, कई लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, कोई भी चीज छोटी नहीं होती. कई लोगों के लिए पानी हो सकता है. आई डोंट नो द आंसर. द सेकंड थिंग इज व्हाट आर पीपल गोइंग टू पे फॉर. लोग किसके लिए पैसा देंगे. A lot of people ask me कि यार मुझे ना जर्नलिज्म में बहुत पैशन है, जर्नलिस्ट बन जाओ. मैंने कहा मत बनना, पैसा नहीं है, बिल्कुल मत बनना. और पैसा अगर कमाओगे भी तो इलीगल तरीके से बनाओगे. और YouTube आपको पैसा देता नहीं है. इंडिविजुअल जर्नलिज्म में कुछ नहीं है. और एथिक्स इन लार्ज मीडिया हाउसेस आर कंप्लीटली स्क्रूड. डोंट बिकम अ जर्नलिस्ट. कहते लेकिन मेरा पैशन है. मैंने कहा अगर वो पैशन बहुत ही ज्यादा है, then think about a journalistic platform, but don't become a journalist. So understanding कि 90% of success in the world, I will tell you, ये ना मैं आपको बता रहा हूँ, this is the truth. Hard work, people think hard work is important. Hard work is secondary. It is the direction. अगर मैं co-working नहीं करता ना, मतलब luck plays such an important role. People say, a lot of people say कि यार you work hard. I'll tell you a million people who work hard. Luck plays a lot of role. And luck कैसे आएगी? आपका focus on doing something that, because आपको problem तो आनी है, आप quit नहीं करोगे. अगर आपको पसंद है ना, जिस आदमी को फरारी की आवाज पसंद है ना, वो उसके लिए वो भगवान है. वो एक तरफ कृष्ण भगवान आ रहे होंगे, एक तरफ फरारी आ रही होगी, वो कहेगा भगवान जी आपको उससे बाद में बात करूंगा, पहले फरारी देखूंगा. वो पैशन, उसके बाद क्या है ना, वो हारेगा नहीं कभी. वो because he's not working for money. He's working for that high. I'm also trying to find out what is my next high. That is why I'm sad. I'm trying to figure out, यार रितेश और तेरे को क्या पसंद है कोवर्किंग के अलावा. कोवर्किंग नहीं कर सकते और क्या करें. जब तक वो हाई नहीं मिलेगा ना वापस, तब तक वो, बिकॉज पैसे का रिलेशनशिप विद हैप्पीनेस इज दिस. इट गोज लाइक दिस. पहले तो बढ़ता है, इवेंचुअली है ना सीधा हो जाता है. The third question, which is very important for passion discovery, is what is that one thing wherein you are very good at. So ये दोनों में फर्क है. One is what are you good at. One is what do you get meditation out of. कौन सी चीज पसंद है वो एक अलग चीज है. हो सकता है उसमें अच्छे ना हो आज. And I'll tell you the sad part of our education system. I got to know my passion and meaning of life when I was 26. I was a trained doctor. I was 26 and I got to know my passion, and that was that I am a phenomenal interior designer. I'm not trained, but वो मेरा core passion है. आप मेरे इनोवेट के 20 लाख स्क्वायर फीट देख लो. Every campus is a state of the art campus. आप फोटोज जाके देखिएगा. Not to brag, हम है ना हेड ऑन compete करते हैं. कोई वीवर्क आ जाए, कोई आ जाए हमारे सामने, हमारे से compete नहीं कर सकता. हम है ना तोड़ के हम इंडियन डिजाइन बनाते हैं. That is my core passion. And I don't care कोविड आ रहा है, नहीं आ रहा है, कंपनी बिक रही है, नहीं बिक रही है. फॉर मी, जैसे मुझे एक नई कैंपस मिलता है ना बनाने के लिए, मैं पागल हो जाता हूँ. हमारा एक रेस्टोरेंट है अनारदाना, हम लोग मल्टीपल. फॉर मी, आई एम सो पैशनेट अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग दैट आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. नाउ आई एम लकी टू फाइंड माय मीनिंग ऑफ लाइफ. 99.99% people are not able to find, and then they are employed by people who find their meaning of life. Find your meaning of life. अंडरस्टैंड आपको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज में आप अच्छे हो. बचपन से ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए ना, जैसे मैं डांस नहीं कर सकता, आप मेरे को कितना ही ट्रेन करवा लो, मेरे को बहुत टाइम लगेगा. मेरी बहन ना बहुत फिनोमिनल डांस करती है. वो कोई भी नया गाना भी सुनेगी ना, तमिल गाना सुनती है जिसको पता भी नहीं है, उस गाने पे भी डांस करने लग जाती है और ऐसे डांस करती है, इट्स एफर्टलेस. मैंने कहा यार हाउ डू यू डू दैट.
कि आई डोंट नो, कोई ऐसी शफा भगवान ने हम सबको दी है जो वो आप नहीं। एंड लास्ट थिंग इज व्हाट आर पीपल गोइंग टू पे फॉर। Fantastic. So, one piece that got missed, and which I will just put as the very last question to you. I very deeply know that you have to go back to your family. Yes, I understand that, right? तो अब आप क्या देख पा रहे हो दुनिया के बारे में, ड्यू टू बीइंग अ YGL, ड्यू टू गोइंग टू चाइना? आई नो व्हेन यू वेंट टू चाइना, वन ऑफ द एक्सप्रेशंस दैट यू हैड, यार इस कारण से ये लोग हमसे आज भी इतना आगे, राइट? फिनोमिनल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। ऐसा क्या आप देख पा रहे हो जो हम नहीं देख पा रहे यहाँ पे? What about the world do you know? What information do you know that we don't have yet? Okay. At least I'll tell you in my how we are investing as a family office. Sure. We are investing heavily in businesses that are cognizant of climate change. We believe that climate change is going to be a much larger industry than we are thinking today. We are investing heavily into electric. We have invested in companies like Ather, who build these electric scooters. We are very big on education, but informal education. We were the first investors of Joe Stocks. They do 350 million views every single month. We are very bullish on informal education. We believe platforms like yours are going to be huge. We believe that anyone who has the ability to take out and create efficient supply chains. दुनिया में ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. One is shipping and one is supply chains. हम ये कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं जो ना आप कुछ भी करो, सप्लाई चेन की चक्कर में आप फंस जाओ. आप ड्रोन बना रहे हो, यार वहां से पार्ट नहीं आया. If you have a deep understanding of supply chain and shipping routes, you will win the world. And this is a very vague thing to say, but you will be amazed. I believe that anyone who is able to transform and decarbonize supply chain is going to win the world. We are investing in companies that have, हमने एक internal mandate लिया है 2030 तक जो कंपनीज अपने आप को कार्बन न्यूट्रल पे लेके आने की एटलीस्ट प्रयास कर रही हैं, हम उनमें पैसा डाल रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव रेगुलेशन इज गोइंग टू फॉलो. वी बिलीव ग्रीन टैक्स इज गोइंग टू कम. At the same time, we are very, very bullish on mineral energy in India. We believe companies that are going to produce lithium are going to win the world. We are heavily investing in artificial intelligence. Startup na, as a word, is a very dichotomous word. हम सब अभी देख रहे हैं सबके डाउन राउंड्स हो रहे हैं वैल्यूएशंस में. उस पे गलती इन्वेस्टर्स की है. People are investing without any logic. Now, startup दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं true technology startups, Airbnb, who scale without scaling of inventory. वो true technology platforms है, Facebook and Paytm. And then there are startups that are just leveraging technology. जैसे D2C brands है, वो normal business है, just एक sexy technology Amazon के माध्यम से बेच रहे हैं. अगर उनको हम सेम तरीके से वैल्यू करने लग जाएंगे तो वो गलत है. तो वी आर वेरी कॉग्निजेंट एंड वेरी कंजर्वेटिव अबाउट स्टार्टअप वैल्यूएशंस. वी इन्वेस्ट वेरी अर्ली. हमने इंक 42 में पैसा डाला था 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे. सो वी आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव. वी डोंट वांट टू एंड वी हैव नो फोमो इन लाइफ. वी वुड रादर हैव अ पीसफुल स्लीप. As we speak right now, we have 0 partners, 0 equity holders in our business. We do not want to enter into anything which is even, and one thing which people make mistake in investing is people follow the herd. That is the only way to not invest. Have your clear thinking. Spend at least 2 hours away from this phone. जितना आप इससे दूर रहोगे ना उतना ज़्यादा आप successful होगे. And last point is, I call this the airline mile phenomenon. The more miles on your airline card, the higher will your success be because you are exposed. You see various different situations. Fantastic, phenomenal. On that note, absolutely a huge round of applause for Dr. Ritesh Malik. Ritesh Malik, thank you so much for doing this. I'll tell you why. मैंने ना बहुत लेट जाकर अपने जीवन में ये बात समझी कि मैंने बहुत देर तक कॉर्पोरेट लाइफ के पीछे लगा रहा और बहुत लेट जाकर ये बात समझी that I'm a very very good teacher. जब ये दिमाग की बत्ती जली ना, फिर तब से पढ़ाना शुरू किया.
and very late in life, like very late in life. जो आज मैं कर रहा हूँ with MBA plus, I should have been doing this like 10 years back at least, right? But I'm so happy कि आपने आज वो किया है, केवल इस रूम के लिए नहीं, इस पूरे देश के लिए. लोगों की ना बत्ती जलेगी इस लेक्चर के कारण, राइट? और मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है. लोग सोचेंगे मैं किसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम एमबी प्लस एंड तो बहुत नहीं, ये बिल्कुल सही भाषा है. जो आज आपने किया है दैट इज लिटरली सेवा. ये सेवा है. और आप लोगों से मेरा एक बहुत डीप और बड़ा एक हम्बल थॉट है. देखिए इस समय रितेश भाई की सिस्टर, इनकी बहन, उनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन शी इज नॉट डूइंग टू वेल, एंड उसके बावजूद 85 मिनट तक ही इज बीन विद अस, राइट? नंबर 1, in your truest and the deepest of your blessings, keep her. Thank you. That's beautiful. You might not know her and it's okay. I might not know her and it's okay. Trust me. I will do that. जब आज अदिति मुझे मंदिर लेकर जाएगी, I will ensure that I do that, right? And please do that. ये सबसे ज्यादा जरूरी है. धंधा, बिजनेस सब हो जाता है, जब आप इंसान बन जाते हैं. That's number 1, right? Second is बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जीवन में जो बहुत कटु सत्य होते हैं, अपने आप में सत्य होते हैं. सिर्फ बोलते ही नहीं, सत्य अपने आप में होते हैं. रितेश भाई genuinely is one of them. I'm not kidding you. Please learn from him as much as you can. आज आपने जो रितेश जी किया है, मैं I cannot be more thankful to you ever in my life. आप है ना इतना मत करो. हमारे जो फादर है ना, मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को है ना बहुत इज्जत मिलती है बाहर. तो कहते किस बात की? मैंने कहा मैं लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ. कहते अच्छा ये बताओ. सो माय डैड एंड माय मॉम दे थिंक दैट, एंड टिल आई सोल्ड द बिजनेस फॉर देम इट वाज ओनली फाइनेंशियल सक्सेस. टिल आई सोल्ड द बिजनेस दे यूज्ड टू थिंक आई एम अ फूल. वो कहते सुबह है ना बस्ता लेके भाग जाता है. एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग. There'll be a lot of naysayers, and this is just to conclude. A lot of people, your friends, your wife, a lot of people will not believe you. How do you buy that belief? That is up to you. You can buy that belief from a butterfly who leaves her cocoon, develops into a pupa, becomes a larva, and then becomes a butterfly. अब हर स्टेज पे बटरफ्लाई का जो अंडा है ना, वो कंफर्ट जोन तोड़ रहा है. अंडे की भी खासियत होती है, वो जब तक अंदर से पुश नहीं मारेगा ना, वो टूटेगा नहीं तो वो बनेगा नहीं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. स्टॉप लिविंग लाइफ डिक्टेटेड बाय अदर पीपल. एंड लास्ट पॉइंट बिफोर आई लीव इज a lot of people will tell you money is not important. It is one of the most important forms of wealth. The more you have, the more options you will have. But wealth ka true purpose is health. Second is meaning of life. Third is trust and social reputation. Fourth is family. Fifth is money. And this is you're hearing this from a person who thought money is the first. I compromised my health, my family, almost everything for money. And I realized that when I had it, now earlier my goal was कि इतना पैसा होना चाहिए. Now my goal is that इतना हो चलेगा, but उसके साथ ये होनी चाहिए. So metrics are very important. Set high goals. Absolutely. On that note, thank you so very much.